आज हम आपको ले चलेंगे एक खास इवेंट पर जहां हुई ध्वनि भानुशाली और आशिम गुलाटी की फिल्म कहां शुरू कहां खत्म के ट्रेलर लॉन्च की धमाकेदार शुरुआत। क्या शानदार इवेंट में दोनों सितारे अपने स्टाइलिश अंदाज में पूरी मीडिया के सामने आए। ध्वनि अपने अलग ही रूप में नजर आई, एक खूबसूरत पोशाक में जिसे देखते ही सबकी नजरें एक समान टिक गईं। वहीं आशिम गुलाटी भी अपने कूल और कॉन्फिडेंट स्टाइल में छा गए। मीडिया से बात करते हुए ध्वनि ने बताया कि ये फिल्म उनके लिए कितनी खास है और इसके गाने उनके दिल के कितने करीब हैं। आशिम ने भी अपने किरदार के बारे में कुछ दिलचस्प बातें साझा की। Sehra is a very special track again because Sachin Jigar and I really have a lot of love for them and they've given us this track. And Varun has sung it. I think we both have a lot of love for Sachin Jigar. And मेरी एक actually बहुत special memory है जब वो गिटार पे बजा रहे थे गाना. I think Lakshman sir was also there, Saurabh was also there. Papa was also there. And मेरी एक जोर से चीख निकली. I was like, ये क्या गाना है? This is insane. And I was like, this has to be on our album. And then they agreed because, I mean, it was such a beautiful song and still is. And it's touching so many hearts. And then Varun agreed to sing it. And it just comes at such a beautiful moment in our film. And थोड़ा montage में आता है, वो बड़ा प्यारा गाना है, आप सुनिएगा ज़रूर. एंड मैं बस ये कहना चाहती थी कि ये गाना इतना ब्यूटीफुल नहीं होता अगर इसमें वरुण ने भी नहीं गाया होता और आशिम भी नहीं होते. और आई जस्ट फील लाइक it's the soul of our film. No sir, Saurabh sir and Lakshman sir. And I love this song and I hope you guys give it love even in our film. It's out on the 20th of September. अब मैं बहुत बोल लिया, मैं जा रही हूँ. यार हमें तो बस बहुत ज़्यादा मज़े आए. Working with Dhwani, working with Vinod sir, it was like working with family. We were made to feel so comfortable. And एक गाने से बात शुरू हुई और फिर हमने 3 गाने कर दिए पिक्चर में. तो हमारे लिए जोरदार तालियां हो जाएं. Well, this was my first song with the two of them and very kind, very easygoing in the studio. So I had a great time singing a legendary song like एक लड़की भीगी भागी सी. Yes, absolutely. That's quite a lot of. Yeah, it's a responsibility. Yes, so and he just took me through it like a breeze, you know. So it was amazing. So I'm just like, this is Lakshman sir shot this, and I don't think he shot this in a day. He shot this in a day, and this is like the best thing that ever happened to me in my whole life. Wow. Beautiful. Amazing. Lakshman sir. Give it up for that one. I remember asking Lakshman sir, "ये कैसे करेंगे sir?" He's like, "Raje, हो जाएगा. तू हो जाएगा." practice कर. With everything that I've asked him about the film, I don't think anyone, apart from every person who's sitting on this row, because I kept questioning it, but that's just me. And I think each and every one person here just kept telling me the same thing. हो जाएगा. Oh. You know? And that was the start of the film. And I can't believe that it's, what? कल मेरा 3-4 birthday था days तो मतलब away. आज 16th है. 4 दिन. This is the best birthday gift that I could ever ask for. Thank you. Thank you Lakshman sir. Thank you Karishma ma'am. Thank you Saurabh sir. Vinod sir. I mean this is I'm not going to make it boring. I don't want to give a speech. But thank you for instilling this confidence in me which I didn't have at the time till a very few days because I kept asking him. I was like, sir, गाना है 3 दिन rehearsal के लिए कैसे करेंगे and he just kept saying कि तू tension मत ले. And let me tell you this. So the additional lyrics and everything else was done by Akshay and IP, and I love them for it. They've given it such a beautiful indie vibe.
And then that's why we also had to have Vismay on it, who's done a killer vocal. What is up, on the guys? track. वो यार जोर से चिल्ला दो, मुझे लास्ट वाले रो से एक्सपेक्टेशंस हैं. देखा? Thank you so much. So, yeah, happy birthday Hashim Thank you so much, brother. and congratulations for the movie. हैप्पी बर्थडे आशिम. यार ठीक से बर्थडे हम इसके बाद कर लेंगे. हाशिम को जाने नहीं हाँ, देंगे. मेरी सक्सेस पार्टी है. सक्सेस पार्टी है. सो या हम गाएं? आप Are we सुनेंगे? ready for it? इमोशन जाहिर करने का एक पहला समय है कि कितनी थैंकफुल हूँ मैं फ्रॉम लक्ष्मण सर टू करिश्मा मैम टू सौरभ. मुझे नहीं लगता मेरी पहली पिक्चर ऐसी हो भी पाती अगर आप नहीं होते, और शायद होती भी नहीं. तो थैंक यू सो मच. आपने बहुत मेरा साथ दिया लाइक माई पेरेंट्स वुड, एंड बहुत मेरा ख्याल रखा लाइक अ बिग ब्रदर. मैन, आई लव यू अ लॉट. It was all 40 days, dude. And today, actually, more than anything else, my dadu's sitting here. And Yay! I think for our whole family, it is such a big day. And you will probably not get the emotion, but we do. My papa, my dadu, missed my dadi a lot today. She would have been very proud. And we were sitting, I just wanted to share this story. We were sitting on number 9 and number 10. तो जब मैं बड़ी हो रही थी, हमारा पहले घर था फ्लैट नंबर 9 और फ्लैट नंबर 10B. Wow. तो a journey from there, कहाँ शुरू to now. I think it's been I've seen all phases of my dad really achieve in life. रोना नहीं है. रोना नहीं है. मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज वो ऐसे सक्षम हैं कि वो मुझे सपोर्ट कर पाते हैं, मेरे सारे सपने पूरे कर पाते हैं, जिसके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ. आई थिंक मेरी लाइफ मेरे पेरेंट्स के लिए है. कहाँ से कहाँ शुरू किया था और इंशाल्लाह कभी खत्म ना हो ये जर्नी. तो आई फील इट्स जस्ट टेकन सो मच टू रीच. Yeah, come on, guys. बनता है. It's not a sob story. I don't mean to make it like that, but I just feel like it's very important that I mention this. And you know, Saurabh, when I was signing the film, Saurabh, after I signed it, Saurabh came to me and he said, I had sent you a message about 6-7 years back, and that message was somewhere lost. I could not, for some reason, reply to him or didn't see it. And then he said, sir, मैं ये पिक्चर तब भी आपके साथ बनाना चाहता था. और 8 साल बाद he came and he said, it's still the same and I still want to make this film with you. So I feel कहीं ना कहीं I've done something right for him to have that faith in me still, and for him to believe that I could play and be his Krish to his Meera. So that's a very, very... Wow. You know, it's a very big deal for me, because somewhere you kind of, in your day-to-day lives, in the journey that I've been having, I think somewhere you take it, कहीं ना कहीं आप भूल जाते हो कि आप किस रीज़न से ये काम कर रहे हो और क्यों आए हो अपनी फैमिली छोड़ के. बट जब ऐसे लोगों का साथ मिलता है और जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, when they have that confidence in you, it feels like you've done something right, you know. And it's just been such a beautiful journey. I won't want to trade it with the world. You know. तो memorable moments. I think ऐसा कुछ moment नहीं है. Every now and then I'll touch myself and I'll be like, you know, I'll pinch myself and I'm like, is this really happening? And the one good thing that I feel, one of the many good things, of course, but our preparation was very solid. Our workshops were really good. I think the moment वो काम जो जितना था वो हम कर चुके थे फिल्म से पहले. Super ready. All हाँ. set. And when we came to the set, it was all fun. We were just having fun with it. And one moment I'll tell you with Dhwani. Yes. आपका one of the part of your questions were when Dhwani was driving the car, and this was a chase sequence. Or I was supposed to be nervous. But I didn't have to work hard for it because Dhwani was driving the car. That is so mean. And on top of that, विनोद सर की बेटी है और जिप लगा हुआ था गाड़ी में, पीछे से लोग डंडे लेके आ रहे हैं, बट ये गाड़ी चला रही थी और आई थिंक जिस हिसाब से इसने गाड़ी चलाई है हमारी जर्नी काफ़ी स्मूथ रही है उसके बाद.
ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बहुत बिकॉज व्हाट मेरा साइकी ऐसा चल रहा था कि पीछे एक्चुअली लोग डंडे लेके आ रहे हैं, मुझे क्रिश को बचाना है, तो मैं दैट्स व्हाई आई वाज ड्राइविंग द वे आई वाज. But you really did a good job. आई सेव्ड यू बडी. फिल्म बनाते हैं सर, कहाँ से प्रेरणा आती है? अच्छी फिल्म बनाओ, पैसे कमाओ, निकल जाओ. कौन प्रेरणा देता है? बट सर एक बात बताता हूँ मैं आपको, कहाँ शुरू कहाँ खत्म से रिलेटेड. 25 साल पहले गोरेगांव में सहारा इंडिया नेटवर्क हुआ करता था, आपको पता होगा. वहाँ पे मैं कैमरा अटेंडेंट था, मेरी सैलरी थी 1500 रुपया. और मेरा भाई विनोद भानुशाली वहाँ पे मार्केटिंग में इंटर्न था, उनकी सैलरी थी 1200 रुपया. बता दो ना. मेरा जैसे ये कैमरा अटेंडेंट था, तो मेरे को है ना एक बहुत ही फैंसी ये दिया गया था, AJW3. जब पता चला तो वो पियून के एक लेवल ऊपर था, असिस्टेंट जूनियर वर्कर 3. तो ये जर्नी वहाँ से शुरू हुई है जहाँ पे हम सहारा के बाहर एक वड़ा पाव की गाड़ी थी, वहाँ पे वड़ा पाव खाते थे. उसके बाद भाई का रास्ता अलग हो गया, मेरा रास्ता अलग हो गया. मैं कैमरा अटेंडेंट से कैमरामैन बन गया, DOP बन गया, डायरेक्टर बन गया, फिर प्रोड्यूसर बन गया. भाई भी कहाँ से कहाँ पहुँच गए. सौरभ के साथ जब ये फिल्म हमने लिखी थी, ऋषि विरमानी सर ने ये फिल्म लिखी है, सौरभ ने डायरेक्ट की है, और ये फिल्म की स्क्रिप्ट जब खत्म हुई थी तो मैं भाई के पास गया था और मैंने कहा था मुझे ये फिल्म धोनी के साथ करनी है. इन्होंने मुझे अप्रोच नहीं किया था, तो कहीं से कुछ प्रेरणा नहीं थी, कुछ नहीं. सिंपल था कि धोनी के जो म्यूजिक वीडियो देखे थे मैंने, उसको देखा था, उसका इनोसेंस मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था हमेशा. कि इस कैरेक्टर को, छोटी सी बात है कि पापा ने शादी करने से पहले मुझे पूछा क्यों नहीं. उसके लिए इनोसेंस चाहिए था आंखों में, और वो ध्वनि की आंखों में था. तो इस तरह से सर हम जुड़े, और एक 25 साल पहले हम क्या करते थे और आज क्या कर रहे हैं, कहाँ शुरू हुआ था और कहाँ अभी खत्म नहीं होने जा रहा है. बट थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड ब्लेसिंग. सीरियसली सर वो तो आपको फिल्म देखना पड़ेगा वो समझने के लिए. बट सर ये जब आया था, पहले हमने शुरू की थी लिखना, इट वाज थॉट कि एक रोम कॉम है, बट वो कहीं भी हमने ऐसा कुछ नहीं दिखाया जहां आपको ऐसा लगे कि इट्स अ रोम कॉम. इट्स फुल आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म जिसमें एक्सीडेंटली दो लोग मिल जाते हैं. तो वो जब ऐसे भी कहते हैं कि कहाँ शुरू और कहाँ ख़त्म होने वाला है, उसके थॉट से आया था. और आई थिंक वो लक्ष्मण सर से ही आया था. हम लोग तो बहुत बिजी थे वो सब करने में, पूरा प्रोसेस वो करने में, एंड वी कुडंट हैव गॉट अ बेटर टाइटल देन दिस. नहीं, आई मस्ट से आपने सही सवाल पूछा सर, सौरभ ने भी सही जवाब दिया. जैसे आपने ट्रेलर में देखा, एक लड़का गेट क्रैशर है, वो एक शादी का गेट क्रैश करता है, वहाँ पे एक लड़की को मिलता है, और फिर कहाँ से शुरू होता है और वो चीज़ ख़त्म कहाँ पे होती है. और ये जो टाइटल जो है कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, वो हमारे राहुल नंदा सर है, ये उनके वहाँ से आया टाइटल है. बहुत ही ब्यूटीफुल टाइटल है. सो थैंक्स टू हिम फॉर दिस टाइटल. जब वो आया मेरे पास में, उसने बोला कि एक्चुअली ना इससे पहले एक डायरेक्टर आया था, मैं सिर्फ अभी उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसने बताया था तब हम लोग रेडी नहीं थे, ना मैं रेडी था ना ध्वनि रेडी थी. म्यूज़िक उसकी म्यूज़िक में जो गाने हैं, वास्ते, ले जा रहे, ये सब बहुत मतलब 7 बिलियन व्यूज़ हैं. एंड शी इज़ द ओनली गर्ल पॉप स्टार जिसके 3 गाने 1 बिलियन के ऊपर है, मतलब 100 करोड़ के ऊपर देख चुके हैं. तो हम लोग उसी में खुश थे, बहुत खुश थे. मतलब यू नो दैट शी इज़ डन वेल फॉर हर सेल्फ. एंड उसमें नेपोटिज्म भी नहीं आता है ना, मतलब गाना है, गा रही है, आवाज़ सुन रहे हैं लोग, और जहाँ शो कर रही है. तो बट जैसे लक्ष्मण ने कहा था, जिस दिन जब उसने बोला मेरे को, क्योंकि आई होल्ड हिम इन हाई रिगार्ड्स, मतलब हम लोग इतने नीचे स्तर से ऊपर आए हुए दोनों लोग हैं ना, कि हम ट्रूथफुल होते हैं एक दूसरे के साथ में, सीधा बात करते हैं, नो फिल्टर. तो जब उसने मेरे को बोला कि लक्ष्मण ने बोला कि यार विनोद देख ये पिक्चर है भाई, एंड मेरे को दिख रही है ध्वनि, मैं एक भी दिन सेट पे नहीं आने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ चेक काटूंगा, बाकी सब पिक्चर तेरे कंधे पे, यू हैव टू डू. सेट पे मैं भी एक दिन नहीं गया, पूरी फिल्म सौरभ ने की है. मैं वो चेक जो बैंक में आ रहा था वो काउंट कर रहा था. लेकिन इसने एक बात बोली मेरे को, लक्ष्मण ने, कि जब तू फिल्म देखेगा ना, तो वो फिल्म लक्ष्मण उत्तेकर की ही लगेगी, जो सौरभ ने इतनी ईमानदारी और शिद्दत से बनाया ना. आई मस्ट बी थैंकफुल फॉर हिम. Yes. And seriously from bottom of my heart I want to tell you guys कि जिस तरह से आपने लुका छुपी, मिमी, ज़रा हटके ज़रा बचके को प्यार किया था, जिस तरह से आपको पसंद आई थी, ये वही शेड है. आप हंसेंगे, रोएंगे, चुप बैठेंगे, तालियां बजाएंगे,
और एक फैमिली फिल्म है जो आप साथ अपने फैमिली के एंजॉय कर पाओगे, वही जॉनर है, वही फ्लेवर है, ये मेरा आपसे वादा है। सीख के जाएं। मैं चाहती हूँ आप एंटरटेन होके जाएं मोर देन एनीथिंग एल्स। और एक छोटा सा मैसेज है, आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि पापा ने मुझसे पूछा नहीं मेरी शादी फिक्स करने से पहले। तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, इसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। हम लोगों की हम लड़कियों की लाइफ डिज़ाइन कर देते हैं। आई फील लाइक पेरेंट्स हैव दिस हैबिट ऑफ सेइंग कि हाँ तुम बेटा ये करना, उसके बाद तुम शादी कर लेना। तो ये कभी मेरे साथ नहीं हुआ, पर मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरी जो मैं जब बड़ी हो रही थी, ऐसी बहुत सारी लड़कियां थी मेरे अराउंड जिनकी शादी हो जाती थी 20 साल के बाद। तो कभी मुझे वो समझ नहीं आया, पर फिर मैंने पापा से जाके पूछा तो ही सेड यस ये होता है। आई वॉज़ वेरी लकी कि मेरे माँ बाप ने हर वक्त एट एवरी लेवल ऑफ माई लाइफ मुझसे पूछा कि तुमको क्या करियर चाहिए, तुम क्या पढ़ना चाहती हो, तुम शादी करना चाहती हो कि नहीं करना चाहती हो। दे ऑलवेज मेड श्योर दैट माई लाइफ इज़ माई डिसीजन एंड नॉट देयर्स। और अगर कुछ लोग ये देख के अपना नज़रिया थोड़ा सा बदलते हैं तो आई फील लाइक हम जीत जाएंगे। आई थिंक इससे पहले जितने भी मैंने कैरेक्टर्स किए हैं और मैंने इस तरीके की कॉमेडी नहीं करी, और ये पहली बार है। इट्स एन आउट एंड आउट सॉर्ट ऑफ कॉमेडिक कैरेक्टर जहाँ पर मुझे क्रिएटिव लिबर्टी दी गई है कि मैं कुछ भी जिस तरीके से मैं इसे निभाना चाहूँ मैं निभाऊँ। और इसका आई विल जस्ट लाइक टू थैंक सौरभ हियर बिकॉज ऑन सेट्स देयर वाज सच अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। इट वाज नेवर लाइक कि यार सौरभ ने बोला कि यार ऐसे ही चाहिए मुझे। हम लोग पूछते थे, साथ में कोलैबोरेट करते थे, और करते करते आई थिंक पूरी फिल्म बन गई और हमें पता भी नहीं चला। तो आई थिंक दैट इन इट सेल्फ इज़ अ बिग डील। एंड और जहाँ से जिस तरीके के कैरेक्टर्स मैंने किए हैं वो थोड़े सीरियस टाइप के थे, तो आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट ब्रेक फॉर मी ऑल्सो वेयर आई कैन शो अ डिफरेंट शेड ऑफ माई टैलेंट। एंड आई रियली होप कि ये कि जिस तरीके की कॉमेडी करने की कोशिश की है वो एकदम ट्रांसलेट हो स्क्रीन पर और आप लोग को हंसाए, रुलाए और खूब मज़े आए। मैम आई फील अगर सर्कमस्टेंसेस सही हो और अगर आपको अपना फ्री विल दिया जाए तो कभी कोई रिबेल नहीं करेगा। तो आई डोंट थिंक वो बोल्ड था। आई थिंक वो डिसीजन सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीने के लिए था जो मीरा लेती है पिक्चर में, और शायद अगर मेरे साथ एक्चुअल लाइफ में भी ये हुआ होता तो मैं भी भाग जाती। यार फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है, अगर छीन ली जाए तो घुटन होती है ना, बड़ा नेचुरल सा एक इमोशन है। तो आई थिंक फ्रीडम ऑफ चॉइस हर घर में, हर माँ बाप को, हर बच्चों को एक्सरसाइज किसी भी मोमेंट पे अगर ना उसका मौका दिया जाए तो वो एक इट डजंट मेक यू फील, इट्स सफोकेटिंग। तो आई फील लाइक कि जो भी ये देख रहे हैं, जो भी जिसके लिए भी मतलब जितने लोग ये पिक्चर देखें और कहीं ना कहीं अगर उनके साथ ये उनकी कहानी है और कहीं ना कहीं इस कहानी से वो रिलेट करते हैं, तो आई थिंक इट्स वो सेल्फ इन्फ्लेक्शन जो है, इंट्रोस्पेक्शन वो होनी चाहिए हमारी कहानी को देख के। बाकी एंटरटेनिंग तो है, वी मेड इट यू नो फॉर पीपल टू जस्ट कम एंड एन्जॉय द फिल्म, विच इज़ वाई द मैसेज इज़ कि एक बार पूछना ज़रूर चाहिए, ताकि आप उसके आपकी मर्ज़ी हो या ना हो, बट आपको एटलीस्ट एक चॉइस होनी बहुत ज़रूरी है। एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट पेरेंट्स एंड योर चिल्ड्रन और एनीवन शुड बी आस्किंग वन अनदर। एंड उसके बाद आई थिंक एवरीबडी स्मार्ट इनफ टू टेक देयर ओन डिसीजंस देयर। सर एक्चुअली मेरा आंसर सिमिलर होगा जो मैंने पहले बोला कि बहुत ज़रूरी है कि हम एक फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करें अपने बच्चों के लिए भी। मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, बट मेरे डैड मेरे लिए उन्होंने बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया। उन्होंने मुझसे कभी लाइक आई सेड ये नहीं कहा कि तुमको ये करना ही पड़ेगा। जब भी मैं बड़ी भी हो रही थी तो एक चीज़ होती है ना कि आपका खुद का दिमाग भी चलता है, फिर आप सक्षम हो जाते हो कि मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ और किसी को सिखाना नहीं पड़ेगा या किसी को मेरी लाइफ मैप नहीं करनी पड़ेगी। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली कोई भी कहीं से भी नहीं भागेगा, ना कोई रिवोल्ट होगा। सो आई जस्ट फील अगर पेरेंट्स ये फिल्म देख रहे हैं तो अपनी बच्चियों को सिर्फ पूछ लीजिए ना एक बार कि आप क्या चाहती हो, बस। Sir, huge difference. Huge. I mean, I feel like in my music videos, I just play myself and maybe different sort of emotions heightened. But at the same, but when you talk about a film, it's a different character, it's a different person.
So I had to really work with Saurabh on Meera's character and Lakshman sir. I think till the 2 days before we went on to start filming, I did all my scenes with him, because it's very important that I do justice to what Rishi sir's written, what Lakshman sir's written, and what Saurabh needs to project on screen in terms of Meera. So I don't think म्यूज़िक वीडियो में एक्टिंग और पिक्चर में एक्टिंग एक सेम चीज़ है, बहुत दोनों अलग चीज़ है, बहुत अलग. आई एम ना, सी आई एम ब्लेस्ड. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर मेंशनिंग दैट एक्चुअली. मैम जैसे आपने देखा होगा कि हमारी सारी फिल्मों में, जैसे लुक्का छुपी हो, ज़रा हटके हो, मिमी हो, हर एक फिल्म में मेरा फॉर्मूला ये है कि लोगों को हंसाते हंसाते घर जाते हुए कुछ एक ऐसी चीज़ दे दो जिससे वो सोचते रहेंगे थोड़ी देर, बट उनको हंसाने का प्रॉमिस अपना है. क्योंकि यहाँ किसी को सीख नहीं चाहिए, यहाँ लोगों को हंसना है, क्योंकि दिन भर बाहर इतनी धूप है, इतना कुछ मजमा चल रहा है. थिएटर में आके एवरीवन वांट्स टू गेट एंटरटेन, उनको मनोरंजन करना है. तो बेसिकली इस फिल्म की प्रायोरिटी थी लोगों का मनोरंजन करना, और उसमें एक हल्का सा मैसेज विच इज़ रियलिटी ऑल्सो. हम शहरों में रहने वाले लोग शायद इस बात को अनुभव नहीं करते. दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में रहने वाले लोग जहाँ पे घूंघट का पता ही नहीं होता, लेकिन 80% ऑफ आवर कंट्री एक्चुअली घूंघट में है औरतें. तो फिल्म में एक डायलॉग है, हंसते हंसते डायलॉग है, कि जहाँ पर एक देश में एक औरत चांद पे झंडा लहराती है, उसी देश में दूसरी तरफ एक औरत को घूंघट हटा के चांद देखने का अधिकार भी नहीं है. आपको ये इवेंट कैसा लगा हमें जरूर बताएं और फिल्म के लिए तैयार हो जाएं. ये थी ध्वनि भानुशाली और आशिम गुलाटी के कहां शुरू कहां खत्म का ट्रेलर लॉन्च की एक झलक. मिलते हैं आपके अगले वीडियो में.